हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं चलने वाला हूँ पीक डिस्ट्रिक्ट के टूर पे और एक छोटा सा स्निपेट पे मैं आपको साथ लेकर चलूँगा। आप मेरे साथ इन तो कुछ लोग वहाँ रिवर के घाटियों किनारे और वादियों को आराम एंजॉय भी कर करें रहे हैं। और फिर बताएं देखता हूँ कि जो आपको कोई कैसा लगा। नीचे जाने का रास्ता हो चलने तो घूमें साथ में। बना करके काफ़ी एक बड़ा ही खूबसूरत सीन यहाँ बन रहा है। यहाँ आप देखें नीचे वैली और पानी और फिर इधर है ना कुछ भेड़ बकरियाँ वहाँ पे। ठीक है, वाह क्या बात है। ये डैम है, डैम के किनारे का दृश्य। Hi guys. Hey, are you alright? Good. Looks lovely, isn't it? Beautiful place. Beautiful place. I just thought I will explore the valley. Nice. It's stunning. Stunning. Needs a tiny bit of sun though. As you can see, it's a very misty today, and that gives a different kind of character as well. Yeah, it has its own little feel, doesn't it? Yeah. Beautiful. You might come on my GoPro, don't mind. Yeah, of course. Yeah. I'm just trying to get some photo from this area. Ah. Oh, it's really cool. It's really cool. I don't know whether I shall be able to walk down there. Oh man. It's so good. It's too good. I need to come back here in a sunny day. Yeah, I think Yeah. the same. Yeah, it's good. Little bit sun would have. Yeah, definitely. Otherwise, I will need to play, and I'm very naturalist. I don't like to Photoshop. Yeah, I like that because it's just better to see it as it is, you know. And it's beautiful enough. It doesn't need the sun. You hear the sound of water, Yeah. and then Yeah. this one needs a tent. Yeah, definitely. So are you a photographer? No, actually, I'm a doctor, Oh wow. and photography is my hobby. I do it seriously, Oh. not commercially, but seriously. Just recently opened my YouTube channel and Facebook. Oh wow. Not to, so as I am not a videographer, so I just pick this one up, and quite often catch nice conversation like this time you guys, Yeah. sometimes these guys. Yeah. Beautiful, amazing. You enjoy your private yeah, space. too. Yeah, see you later. I hope I can walk like that. Yeah, Yeah. if not, then I can. Thank you. Pleasure sir, enjoy your day. तो इस ढंग से एक आपकी बन जाती है
Yeah, sure. What's your Facebook for your photography? Let me give you. Right, Rajani. Raj, Dr. Raj K. Rajnis. What do we do? Of course. It's in my notes, so I can. Dr. Raj K. Rajnish, and I will give you here my YouTube. Yeah. Tonight I am uploading Paris. Oh, Yeah. lovely. What was that like? Paris. Oh, it's nice. It's beautiful. When I went there just last week, it was sunny, Oh. but lots of documentation. I got halted on Charles de Gaulle for a day, almost like missing my 2 flights. By the third one, I got my documents right to come back in my own country. You too. Pleasure. तो हम ऐसे जाते हैं और सीन्स को कैप्चर करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने एक यंग कपल से बात की, वो वहाँ पे है और इस काफ़ी सीरीन इन्वायरमेंट में काम कोई नहीं है और हम यहाँ पे कर रहे हैं वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी। या थोड़ा मिस्टी वेदर है, बिल्कुल जैसे फुहारे होते हैं ना वैसे वाले आ रहे हैं। ये हमारे गेस्ट आ गए, इनकी एक पिक्चर निकाल लूँ मैं। अम्मा जी की काफ़ी नज़दीक आ रही है ये घेरे और बड़ा ही सुंदर है यहाँ का ग्रास। अटेंशन देती हैं आपकी बात को सुन के, जैसे कि आपसे बात कर रही हूँ, कभी डर भी जाती हैं। तो मैं कैमरे की कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी लेंस ये रहे, ढकी रहे। ऊपर से सड़क जा रही है और यहाँ से वैली है। तो आप देख रहे हैं वैली में ये नज़ारे, काफ़ी खूबसूरत वैली। थोड़ा सा सन होता तो शायद ग्रीनरी ज़्यादा उभर के आती, लेकिन एक इस ढंग के वेदर का भी अलग मज़ा है। वाटर की जो साउंड आ रही है बहुत ही स्वीट सा गल्पिंग साउंड आ रहा है। हाँ, छोटी छोटी वेव्स हैं, तरंगे हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। काश यहाँ सिग्नल होता तो मैं बच्चों को दिखा पाता। सबसे ज़्यादा जो मैं मिस करता हूँ वो अपने बच्चों को ही करता हूँ। तो ये है ज़िंदगी में, कभी मैं शांत नहीं बैठा। हाँ, और ये अशांति ही कभी अच्छाई करती है, कभी बुराई करती है। आज मैं काफ़ी परेशान हूँ पिछले कुछ दिनों से और पता नहीं कि ज़िंदगी कहाँ ले जाएंगी। हाँ, लेकिन बस एक खोज है ज़िंदगी की और वो खोज शहर और मोहल्लों की गलियों से होते हुए कभी कभी ऐसे शांत वातावरण में भी आ जाती है। ये देखें किन्हीं ने अपना बारबेक्यू वगैरह बनाया है, तो आप बारबेक्यू करना चाहें तो कुछ रेडीमेड चीज़ें भी मिल जाएंगी आपको। तो डैम में जब पानी आगे आता है तो यहाँ तक चला आता है। अभी पानी कम से कम 20-30 फुट नीचे है। ग्राउंड अच्छी है चलने के लिए और आप मज़े में चल सकते हैं। फिसलने का डर है। आगे से मैं एक अपने राइट पैर के लिए गियर भी लेकर के चलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी राइट ACL टूटी हुई है। तो अभी मुझे लगता है तकरीबन 1 किलोमीटर आगे आकर के मैंने कार पार्क की थी, तो मैं वहाँ आगे तक जाऊँगा। फिर कोई ना कोई होगा ऊपर चढ़ने का रास्ता, फिर मैं वहाँ से ऊपर चढ़ूँगा और ऊपर आने के बाद फिर सड़क के रास्ते से ये करेंगे। ट्रेल्स वहाँ से जा रही हैं, आप देखिए वहाँ लोग जा रहे हैं वहाँ से। तो ट्रेल्स थोड़ी ऊपर से है और मैं यहाँ थोड़ा नीचे वैली में। मुझे लगता है आगे वैली और भी खूबसूरत होगी। काश थोड़ा सनी डे होता
और मैं थोड़ा पहले आया होता। बर्ड्स काफ़ी हैं यहाँ पे और मुझे बर्ड्स की फ़ोटोग्राफी करनी होती तो शायद ये एक अच्छा स्पॉट होता। मैं लेंस चेंज अभी नहीं करना चाहता और ये बर्ड्स तो भाग जाएंगी जी। यही हो रहा है, बहुत ही फास्ट होती हैं ये बर्ड्स। इनको एयर में कैच करना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है, लेकिन ऐसी डालियों पे आप दूर के लेंसेज से कैच कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मुझे 3-4 कैमरे चाहिए तब जा कर के कुछ हो पाएगा। दूसरी तरफ भी देखें, लोग थोड़ी साइकिलिंग कर रहे हैं तो उधर एक साइकिलिंग की ट्रैक होगी। वाह क्या बात है। ये सारे बर्ड्स मेरे साथ ही साथ ऐसे आगे आगे जा रहे हैं और मैं इनके पीछे पीछे, 2 ग्रुप में जा रहे हैं। ये पहले पीछे होते हैं, फिर आगे होते हैं, फिर पीछे होते हैं, फिर आगे होते हैं। हाँ, और यहाँ नज़ारे देखें। काश मेरे बच्चों का फ़ोन मिल जाता। नहीं, ओके। तो मैं अभी नदी के किनारे से ही जाऊंगा। ये मेरी हाइकिंग वाली शू अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल है और मैं डिफरेंस देख रहा हूँ। स्लिप अभी एक भी बार नहीं की है, तो नॉन स्लिपरी। मेरी जो लेदर वाली शू थी उसमें थोड़ा दर्द होने लगता है, शायद वेन के कंप्रेशन से कंजेशन हो जाती है और उसकी वजह से दर्द होता था। इसमें क्या देखता हूँ, इसकी जो नायलॉन वाली जो क्या उसको बोलते हैं, लेसेस हैं, ये लेसेस ना थोड़ी सी लूज होती हैं तो कई बार इनको बांधना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम ये लूज उतने ही होते हैं जितने में आपका कि कंफर्ट लेवल बन जाए पैर का, तो काफ़ी अच्छा है। वाह, मुझे वैली के एक नज़ारे मिल रहे हैं और इधर से मैं चल के आया। गोप्रो की शूटिंग चालू है। जब कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं अब, पहले तो मैं टूर कर चुका हूँ, लेकिन एक्सटेंसिव टूर मैंने जेके की थी, हिमाचल की थी, उत्तराखंड की नहीं की है। तो शायद एक बड़ा टूर मैं उत्तराखंड या फिर जेके की करूं। एक ही चीज़ का डर मुझे सताए रहता है, वहाँ की सिक्योरिटी का, क्योंकि मैं 4K में रिकॉर्ड करता हूँ तो ये अब रास्ता यहाँ से मुश्किल हो रहा है, तो काफ़ी जल्दी ही जगह भर जाती है। अच्छा, एक और टिप मैं आपको दे दूँ, जब आप ऐसे रास्ते पे चलें तो आप अपने लेंस की कैप लगा लें, क्या पता आप गिर जाएं, आपकी लेंस फूट जाए। तो ये 2-3 भी मैं एक 360 बना लेता हूँ यहाँ की। बहुत काम, बहुत सीरीन, बहुत शांत वातावरण, कोई नहीं यहाँ पे है। और ये देखिए नदी यहाँ जा रही है। नदी की जब पानी बढ़ती है तो इतनी हाइट तक आती है और आप देख सकते हैं कि लहरों के साथ कैसे ज़मीन की कटाव हुई है। और इस वजह से यहाँ से कुछ घास वास भी नहीं दिखाई देंगे, ऊपर आपको घास दिखाई देंगे। सो इस अमेजिंग, जब पानी कमा हुआ हो तो आप इनके किनारे आएँ और ये बड़े नेचुरल सी चीज़ आपको एक शानदार नज़ारा देते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ फ़ोटोग्राफी कर लूँ। ये देखें गीजेज वहाँ फ्लाई कर रहे हैं। हाँ, वाह, दिल खुश हो गया। ये ज़मीन भी काफ़ी बाउंसी है। ये लेंस भारी है, इसको हाथ में लेना पड़ेगा। ये लेंस बहुत भारी है, बेल्ट में नहीं रह सकती। 200 mm की लेंस, बेल्ट से बाहर की चीज़ है वो। मेरा पैंट ही नीचे उतर जा रहा है।
तो आजकल कैमरे काफ़ी महंगे आते हैं, लेंसेज काफ़ी महंगी आती है, ख़ास करके जब आप सोनी के हो प्राइम कैमरे, प्राइम लेंसेज, तो आप उनको बड़ा ही ख्याल रखना पड़ता है। एक और मैं सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से देखता हूँ क्या कैसी रिजल्ट आती है। यहाँ किसी ने बारबेक्यू की है। काफ़ी रॉकी बेड है यहाँ। अब पता नहीं ये पहाड़ थे जो मिट्टी बन गए या मिट्टी हैं जो पहाड़ बन रहे हैं। जाहिर सी बात है, इतनी रॉक तो किसी ने ला करके रखी नहीं है। तो ऐसे ही है ये नज़ारा। वाह, आप देख सकते हैं कि एक ढंग का रॉकी बेड है, काफ़ी लेयर में, कहीं रॉक्स हैं कहीं पे नहीं है, तो कहीं मिट्टी है कहीं रॉक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेयर है ये। मुझे लगता है कि मुझे फ़ोटो होनी चाहिए, और ऐसे में ही मुझे 16 mm लेंस की कमी बड़ी खलती है। अब उसको अंदर रख दो तो फिर यहाँ प्रॉब्लम है। तो 16 में तो काफ़ी कैप्चर करता। मैं लूँगा एक अलग लेंस लूँगा 16 to 35। शायद मैं चेंज कर लूँ। 3000 पाउंड जाएगा आपका। हाँ, तो आप देखें कि मैं इधर से ही अभी तक जा रहा हूँ, और काफ़ी मज़ेदार रास्ता, और मुझे लगता है कि ये एक इंडिकेशन आ गया कि मुझे ऊपर चली जानी चाहिए। यहाँ से कोई लोगों की चलने की ट्रेल है नहीं, तो मुश्किल आएगी, है ना। तो अब ऊपर कहाँ से जाएं? यहाँ कहीं आसपास से बना होगा ऊपर जाने के लिए। वाह, ये भी एक खूबसूरत लग रहा है। खैर, अब इसको हम कवर करते हैं ऊपर चल के, और शायद मैं यहीं से वापस भी हो जाऊं आगे के लिए। अगली बार किसी दिन कवर करेंगे, क्योंकि ट्रेल यही होगी। देखता हूँ यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, शायद यहाँ से एक मिल जाए जाने का। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी काई जम गई होती है, तो ये पत्थर बड़े सिंपल दिखते हैं, लेकिन थोड़ी सी पानी पड़ी हो तो काफ़ी स्लिपरी होते हैं। तो बी केयरफुल, रादर देन बिग स्टोन गो फॉर स्मॉल स्टोन्स। तो वो 3-4 मिलके ना ग्रिप बना देते हैं, बट एट द सेम टाइम वन सिंगल स्टोन कैन बी। ये लो जी, एक ट्रेल मिल गई ऊपर जाने के लिए। पता नहीं कहाँ निकालेगी, लेकिन ट्रेल है ऊपर जाने की। एक चलूँ?
लगता है मैं ओवर शूट कर रहा हूँ अपने डेस्टिनेशन को। यहाँ आ गया मैं। तो जगह जगह पर ऐसे बैठने वाली बने हुए हैं। चलिए ऊपर गिरा नहीं भाई। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वो वॉकिंग ट्रेल है। Easy footpath to Derwent Overlook and Fair Homes. Walkers only. और इधर मेरी गाड़ी, सिर्फ मैं ही अकेला बच गया। देखो भाई कोई टिकट विकट ना लगी हो। यहाँ पे हालांकि एक बस स्टॉप बनी और पार्किंग मीटर भी लगे, तो थोड़ा डर लगा रहता है। ये छुपे हुए कैमरे लगाए रखते हैं और आपको पे करना होता है। खैर आपको दिखाता हूँ जंगल के बीच में इंटरनेट लगा करके ऐसे है। हैंड सैनिटाइजर के लगी हुई है। नो ड्रोन फ्लाइंग, नो स्विमिंग। आ गए अपनी गाड़ी के पास, लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी जी की एक और पिक्चर ली जाए। वाह काफ़ी हुआ ना। इतना सारा कुछ करना पड़ता है एवरी टाइम यू गो। Hi guys, here comes end of my this Peak Valley walking tour. Actually, it is just a part of my journey. It was a huge walk, very long walk, tiring one now, and I'm presenting you some of my snaps which I have taken during my walk. Quite often you saw my camera there. I hope you like it. Please do like, subscribe, comment and suggest. Your comments actually will help me improve, feel me connected with you.
And that's how the life is. People should enjoy their own life and where possible share their experiences, every little things which can be useful to myself or to other one. I hope you enjoyed. Keep watching. Have a good day ahead. Have a safe day ahead. Corona is not over yet. Be alert. Be careful. Thank you. Bye bye.